Morning, my dear people, teachers of DLA S.T.C second year. The subject is English, language proficiency and pedagogy. Paper 5th. And today's topic is the learner and language. And in this topic, there are teaching points. Number 1, different kind of learners. And in this there are two sub points, that is first generation learners and second young learners, that is beginners. And second point is social factor. Third point is analytical discussion. And last point is psychological factors. Under these 4 points we shall discuss the learner and the language. How are the learners to learn the English? First point, different kind of learners. And from this first sub point is first generation learners. First generation learners are those learners who belong to such families in which there is nobody going to school. Neither their parents, nor their brothers, sisters, or anybody have attended school before. They are the only members who are going to school, and they face many problems that they don't get any guidance to do the homework, to study at home. So these are the first generation learner. And B point is, फर्स्ट जनरेशन लर्नर का मतलब ऐसे विद्यार्थी जिनके पहले परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ना उनके माता पिता पढ़े लिखे हैं, ना उनके कोई भाई पढ़े हैं, ना बहन पढ़े हैं, उनके पूर्वजों में भी कोई नहीं पढ़े हैं, वो पहले स्कूल जाने वाले हैं। इसलिए उनको घर पर होमवर्क करने में, पढ़ने में बड़ी मुश्किल आती है। ये कहलाते हैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। सेकेंड इज यंग लर्नर्स, दैट इज बिगिनर्स। बिगिनर्स यानी जो अंग्रेजी पहली बार सीख रहे हैं वो, तो दे लर्न इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड मदर टंग इज लर्न एट देयर होम. They are well equipped in speaking their mother tongue, because everybody in their family speak mother tongue. But not such condition is in the English. ठीक है, ये बिगिनर्स का मतलब जो पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो मदर टंग तो घर में सभी बोलते हैं तो वो सीख जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी की ये स्थिति नहीं है. So they find it very difficult to learn English without any methods, approaches, audio-visual aids, suitable method, approaches, technique, and qualified and trained, experienced, and devoted teacher. Main thing is devoted teacher. आजकल के टीचर डिवोटेड नहीं है, इसलिए ऐसे शुरुआत में पढ़ने वाले बच्चों को बड़ी मुश्किल आती है. थर्ड, now social factor. Second point is social factor. Social factor means family, peers यानी friends, school, society, etc. These are the environment of the learner. That is the social factor. This is the society. There are many social financial problems in rural area and backward areas, in poor families, especially in poor families. The learners cannot concentrate their mind on learning English. ठीक है, तो सोशल फैक्टर यानी जो पिछड़े क्षेत्र है या गरीब क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ बच्चों को बड़ी मुश्किल आती है, वो अंग्रेजी पे ध्यान नहीं दे सकते हैं.
They cannot concentrate on learning English, and their learning English progress is very slow with the comparison to a good society, an area belong to the urban area or belong to the good family. In such a backward area, the classes are overcrowded because there are not so much schools and there are many students in the class. भीड़ होती है क्लास के अंदर. So individual attention is not paid on the learners. इसलिए व्यक्तिगत अध्यापक हर एक पे ध्यान नहीं दे सकता. So it is very difficult to learn English. हम क्या पढ़ रहे हैं कि लर्नर्स को लैंग्वेज पढ़ने में क्या क्या दिक्कत आती है, किस किस प्रकार के लर्नर होते हैं. थर्ड पॉइंट इज एनालिटिकल डिस्कशन. तो researches shows that social factor affect the more social factor is more responsible in making the nature of the learner, in which society he belongs. That factor is very influential with regard to other factors. This is proved by the researches. And now last point, psychological factor, मनोवैज्ञानिक घटक. फैक्टर यानी घटक. तो मनोवैज्ञानिक घटक क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है. एटीट्यूड, एप्टीट्यूड. एटीट्यूड का मतलब बिहेवियर, उसका चाल चलन क्या है. एप्टीट्यूड का मतलब होता है उसकी रुचि, उसकी इंटरेस्ट. मोटिवेशन यानी एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन. नीड्स यानी आवश्यकता. लेवल ऑफ एस्पिरेशन यानी चाह, आकांक्षा, कोई प्राप्त करने की इच्छा. ये लेवल कैसा है एस्पिरेशन का. अफेक्ट द लर्नर्स डिजायर ऑफ लर्निंग. ये सारी चीज़ें जो सीखने वाला विद्यार्थी है, लर्नर यानी सीखने वाला विद्यार्थी, उसके अंग्रेजी सीखने पर प्रभाव डालती है. ये सब चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें. उसका एटीट्यूड कैसा है, लड़के का एप्टीट्यूड कैसा है, मोटिवेशन कितना मिल रहा है, उसकी आवश्यकता क्या है, पूरी होती है घर पर सब चीज़ें उसको मिलती है कि नहीं मिलती है, किताब कॉपियाँ इत्यादि. और उसकी आकांक्षा, चाह कितनी है सीखने की. ये सब मनोवैज्ञानिक घटक है. दीज आर द साइकोलॉजी फैक्टर and these affect the learner's desire of learning. In backward areas, the parents do not motivate their children to learn English. न तो उनके पास समय है और न ही उनके पास इतना ज्ञान है कि वो बच्चों को मोटिवेट कर सके पढ़ने के लिए. They do not spare time, and neither they are so much learned that they can motivate children to learn English. Every child is different from other child. हर विद्यार्थी का नेचर अलग अलग प्रकार का होता है. उसकी लाइक्स, डिसलाइक्स, उसके इंटरेस्ट, उसके स्किल, उसका बिहेवियर. कुछ बच्चे जन्म से ही जो है विचित्र लक्षण होते हैं, लाक्षणिक होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, वो जल्दी सीख जाते हैं. कुछ लोग जन्म से ही जो है पिछड़े होते हैं. तो ये इंडिविजुअल फैक्टर भी प्रभाव डालता है लर्निंग प्रोसेस पर. सो दीज आर द साइकोलॉजिकल फैक्टर विच अफेक्ट ऑन लर्निंग इंग्लिश. नाउ देयर आर सम असाइनमेंट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट फर्स्ट जनरेशन लर्नर. फर्स्ट जनरेशन लर्नर के बारे में आप क्या जानते हैं. उनके परिवार में कोई पहले स्कूल नहीं गया है, वो पहली बार जा रहे हैं. नंबर 2, व्हाट डिफिकल्टीज आर फेस्ड बाय यंग लर्नर्स टू लर्न इंग्लिश. बिगिनर्स को क्या दिक्कत आती है. बिगिनर्स को यदि वो बैकवर्ड एरिया के अंदर है तो उससे बहुत दिक्कत आती है. न उसके माता पिता को टाइम है, न कुछ भी है. तो यदि कोई ऑडियो विजुअल एड नहीं है, वेल डिवोटेड टीचर नहीं है, तो बहुत मुश्किल है उनके लिए. नंबर 3,
Why is English learning progress very slow for the learners belong to backward family or area? तो जो पिछड़े क्षेत्र में या पिछड़े परिवार के जो विद्यार्थी है उनकी इंग्लिश लर्निंग प्रोग्रेस जो बहुत धीमी क्यों होती है? क्योंकि उनके पास इतने वेल साधन नहीं है, उसके घर पे कोई पढ़ाने वाला है, मोटिवेशन नहीं है, ठीक है। और फोर्थ है, हाउ डू साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्ट लर्नर्स लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस के अंदर, विधि के अंदर मनोवैज्ञानिक घटक किस प्रकार प्रभाव डालते हैं? तो उसका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, मोटिवेशन, नीड, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, ये सब घटक जो बातें जो है वो सीखने के अंदर सहायक होती है, वो रेस्पॉन्सिबल होती है। यदि इनके अंदर लड़का अच्छा नहीं है तो वो स्लो सीखेगा, नहीं तो अच्छा सीखेगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे माय डियर प्यूपिल टीचर्स।